You really want to do something in life, but you have a hectic schedule because you're a school student. But guess what? School has given you a 30 days break to do whatever you want to. So you have your life in your hands. You have all the control how to shape your life and change a lot of things in just these 30 days. And let me tell you, it's very easy. You can grow a lot academically and just personally by following a few things. Let's talk about it. Hello everyone, this is Vaishnavi Gupta, hoping you're happy and healthy. Welcome back to my channel. I remember making this type of video or something like this related to summer vacations last year, and that was probably my 4th or 5th video back then, but now it is like almost 200th video of mine. We have come a long way, definitely. So we are going to discuss how I'm planning my summer vacation as a 12th grader and how can you do a lot of things in these 30 days to make your life better academically. क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, कैसे यूटिलाइज करें summer vacation को, and how to make a plan productively जो actually तुम work कर सको जिसके साथ. Well, before entering in the video directly, I want to make you aware about the physics वाला की चल रही है 5th year anniversary, and for that commerce वाला के batches में बहुत ज़्यादा डिस्काउंट चल रहा है, like 75% का डिस्काउंट कर दिया है in their commerce batches. So if you are in class 12th, you know their batches, and if you are in class 11th, here are batches and its features. So if you purchase their batch, you will get live and recorded classes with unlimited views, weekly assignments and 24/7 doubt support. And if you are going for pro batch of Commerce Wala, Uday Pro या फिर Parishram Pro, you will get mentorship with PW expert faculty, hard copy books and access to upcoming batches also. और extra discount के लिए you can use my this coupon code and get some extra discount while you purchase these batches. Don't miss out on these. Coming back to our summer break, I know तुम लोगों की holidays already चल रहे हैं काफ़ी दिन से, या फिर just पढ़ने वाली हैं या फिर अभी शुरू हुई है. So it is the right time. It's not too late. It's not too early. It's the right time to decide and shape your summer vacations. First, let's talk about academics and subjects. How can you do that and how I am planning as a commerce with math student. I am in 12th grade. हमारे में ना accounts की practical file होती है, accounts का project होता है, economics project, English project, business studies का project, सबका प्रोजेक्ट बनता है. एक्सटर्नल्स आते हैं, इंटरनल सिर्फ इंग्लिश का होता है, एक्सटर्नल्स आके चेक करते हैं. सो यू हैव टू बी वेरी लाइक अच्छे से प्रोजेक्ट बनाना होता है. यू कैन नॉट जस्ट डू कि बस फॉर्मेलिटी के लिए बना दिया, राइट. एंड आई एम थिंकिंग कि मैं अभी ही ख़त्म कर लूँ. डिस्पाइट हमारे जो प्रोजेक्ट्स चेक वगैरह होते हैं दैट इज़ लाइक इन जनवरी, बट स्टिल समर वेकेशंस में आई विल ट्राई माई बेस्ट टू ऑलमोस्ट कंप्लीट माई प्रोजेक्ट्स फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स. मैं मेन्स में जिसके 4 के प्रोजेक्ट हमें बनाने हैं. Also, practical file our mom told us to make in this summer vacations only, तो वो भी मैं अभी ही करूँगी. But talking about the subjects जो मैं पढ़ना चाहती हूँ, देखो मेरे मैथ्स का what is happening, मेरे स्कूल में बहुत ही अलग चीज़ चल रही थी, मेरे ट्यूशन में बहुत ही अलग चीज़ चल रही थी, जिस वजह से मैं I was trying to literally sail on 2 boats, इसलिए मैं किसी पे भी नहीं चढ़ पाया and I am literally falling. इसलिए I am going to focus on my coaching center now. बिकॉज आई फील मुझे वो बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ आ रहा है. आई एम प्लानिंग टू डू NCERT असाइनमेंट्स वंस अगेन जिस चैप्टर्स के हो चुके हैं. फॉर इंस्टेंस 3 to 4 चैप्टर्स हो जाएंगे टोटल टिल द टाइम समर वेकेशन एंड हो रही है. एंड आई होप मैं 3 to 4 चैप्टर्स विद असाइनमेंट्स विद NCERT मैं भी अपनी कंप्लीट कर लूँ मैथ्स के. सो आई एम गोइंग विद माई कोचिंग सेंटर इन दिस. टॉकिंग अबाउट अकाउंटेंसी, जिसमें भी मैं कोचिंग सेंटर जा रही हूँ एंड स्कूल ऑल्सो. आई एम प्लानिंग इन अकाउंटेंसी एज मुझे वो थोड़ी बहुत समझ आ रही है टू डू कोप अप विद बोथ इन दिस समर वेकेशन. जो मेरी ट्यूशन में चल रहा है आई एम डूइंग विद दैट. मैं उसको होमवर्क कंप्लीट कर रही हूँ, कोई टेस्ट है, आई एम प्रिपेयरिंग फॉर दैट. बट जब मैं घर पे रहती हूँ और घर में मैं अकाउंटेंसी करूँगी, आई एम प्लानिंग टू डू बुक 3 जो कि मेरे स्कूल में चल रही है. सो कोचिंग सेंटर का काम द बुक 1 मैं वहाँ पे करूँगी, बुक 3 मेरी स्कूल वाली चलेगी, बुक 2 को मैं हाथ भी नहीं लगाऊंगी, मैंने देखा भी नहीं है क्या है. देखो वी नो आर केपेबिलिटीज. देयर आर लॉट ऑफ स्टूडेंट्स जो बोर्ड स्टूडेंट्स 10th के चाहे 12th के, दे ट्राई टू कंप्लीट देयर होल सिलेबस और ऑलमोस्ट ऑल द सिलेबस इन समर वेकेशंस, बट आई एम नॉट वन ऑफ देम. आई डोंट इवन ट्राई टू डू दैट बिकॉज आई रियली डोंट वांट टू. आई थिंक जो पूरा साल मिला है, आई वांट टू यूटिलाइज द पूरा साल. आई वांट टू एंजॉय माई लाइफ too and study too. Talking about English, I am not going to study English in my summer vacations. बिल्कुल दूरियां नहीं बना लूँगी बिकॉज प्रोजेक्ट बन रहा है, वो भी बुक के चैप्टर से ही बनेगा, तो वो वाला चैप्टर तो इसमें हो जाएगा. अभी कुछ ही चैप्टर्स हुए हैं वैसे भी इंग्लिश में. I may read those chapters once again or may not. I have no idea. You'll get to see अगर तुम लोगों ने सब्सक्राइब कर दिया है. If you have already not subscribed to my channel, please do that. I would love to.
have you as my viewer. Okay, so do subscribe. बाकी you'll get to know अगर मैं इंग्लिश पढ़ भी रही हूँ या नहीं, because I don't think I will do that. But yes, बिल्कुल ही इग्नोर नहीं करेंगे, ठीक है. टॉकिंग अबाउट इकोनॉमिक्स, देखो जितना हमारे स्कूल में चल रहा है मैं चाहती हूँ मैं उतना ही कर लूँ, बिकॉज हमारे स्कूल में भी इकोनॉमिक्स काफ़ी अच्छी स्पीड से चल रहा है. डिस्पाइट कुछ कुछ चीज़ें हम बीच बीच में छोड़ के पढ़ा रही हैं. आई एम प्लानिंग कि अब वो मैं छोड़ के ना पढ़ूँ. जब मैं यूट्यूब से खुद अपना पूरा चैप्टर करने बैठूंगी एंड करूँगी, तब आई वॉन्ट टू कम्प्लीट माई चैप्टर विद द क्वेश्चन की प्रैक्टिस. लर्निंग पार्ट भले ही उतना ना हो पाए, बट जितना भी मैक्रो इकोनॉमिक्स में नेशनल इनकम में न्यूमेरिकल्स वाला पार्ट है, दैट्स व्हाट आई वांट टू डू. एंड दिस इज हाउ आई वांट यू टू प्लान योर समर वेकेशंस एज वेल. देखो अगर तुम्हारे 2 ट्यूशन सेंटर, तुम कोचिंग सेंटर के लिए भी जाते हो, यू गो इन स्कूल, 2 अलग अलग सिलेबस चल रहा है, चूज वन साइड. और अगर तुम्हें लगता है सब्जेक्ट तुम्हें आ रहा है समझ में दोनों जगह पर, देन दोनों के साथ कोप अप करो. बिकॉज देखो स्कूल की टेस्ट में गुड मार्क्स लाना इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर रेपुटेशन, फॉर अपनी सेटिस्फैक्शन, बिकॉज यू कैन नॉट जस्ट पास दिस बेयरली पास फ्रॉम स्कूल एंड फोकस ऑन दैट. एट द एंड ऑफ द डे तुम बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो. इफ यू आर इन बोर्ड क्लास और इफ यू आर इन सम अदर क्लास 11th और 9th, देन यू प्रिपेयरिंग फॉर योर फाइनल एग्जामिनेशंस. उसमें पूरा सिलेबस आएगा, सो गो विद इट, प्लान अकॉर्डिंगली. बट हाँ, यू इवन नो योर सब्जेक्ट्स. अब तो तुम्हारे सब्जेक्ट्स तुम्हारे चोजन होंगे इफ यू आर इन 11th और 12th. तो जो सब्जेक्ट्स चूज करा है उसमें खुश और खुशी से उन सब्जेक्ट्स को एक्सेप्ट करके उन्हें पढ़ना अच्छे से स्टार्ट कर दो, बिकॉज दिस इज योर टाइम टू एक्चुअली शाइन एंड कंप्लीट अ लॉट ऑफ थिंग्स. लाइक इसमें अपनी वीक पॉइंट्स जो हैं वो कंप्लीट कर लो. नाउ एज इन मैथ्स में 2 अलग अलग चीज़ें चल रही हैं, अकाउंट्स में 2 अलग अलग चीज़ें चल रही हैं. आई नो व्हाट आर द पार्ट्स दैट आई नीड टू फोकस मोर ऑन, बिकॉज मैं दोनों चीज़ें कर रही हूँ, तो मुझे समझ आ रहा है क्या चीज़ मैं एक बारी में ग्रैब कर पा रही हूँ और क्या चीज़ मैं एक बारी में ग्रैब नहीं कर पा रही हूँ. सो दिस इज द टाइम टू फोकस ऑन योर वीकनेसेस. एंड वन सब्जेक्ट जो बच गया है बिजनेस स्टडीज़, उसका प्रोजेक्ट करना है. आई हैव चोजन द टॉपिक मार्केटिंग. उसका प्रोजेक्ट मैं बनाऊंगी इन दिस समर वेकेशन, क्योंकि पता है प्रोजेक्ट भी बहुत बड़े बड़े बनते हैं, लाइक 35-40 पेजेस के प्रोजेक्ट बनेंगे मेरे. एंड देन बिजनेस स्टडीज़ का आई एम प्लानिंग टू डू NCERT की पूरी अच्छे से रीडिंग थरली. आई ट्राई. जितने भी चैप्टर्स हो चुके हैं उतने ही. मैं कुछ आगे स्कूल से आगे बढ़ने का मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है. बिजनेस स्टडीज़ का शायद मैं एक चैप्टर आगे बढ़ जाऊँ, जैसे कि हमारा भी ऑर्गेनाइजिंग तक हुआ है. मे डू स्टाफिंग एज वेल इन दिस समर वेकेशन, बट एटलीस्ट जितना हो गया है उतना तो आई एम डेफिनेटली डू. लाइक प्रैक्टिस, थोड़ा PYQs देखूंगी एंड NCERT रीड करूँगी. दिस आर द 2 मेजर थिंग्स दैट आई एम गोइंग टू फॉलो एंड कीप इन माइंड इन दिस समर वेकेशंस. ये तो बात हो गई सब्जेक्ट्स और एकेडमिक्स की, बट यू नो आई नो मुझ जैसे बच्चे से 24 घंटे में 4 घंटे भी पढ़ा नहीं जाएगा. सो वॉट अबाउट द रेस्ट ऑफ द टाइम? उसमें क्या करेंगे भाई? आई वॉन्ट टू से build a new skill. Okay, trust me, last summer vacation I tried to do something and मैं फेल भी हुई नहीं भी हुई. तभी मैंने शुरू करा था गिटार एंड स्पेनिश, बट मैंने उसे कंटिन्यू नहीं करा. आई हैव नो रीजंस फॉर इट. आई जस्ट स्टॉप्ड. मैं डुओलिंगो से कर रही थी. बट आई वांट टू सजेस्ट यू, please learn anything. It could be any skill. You can focus on your communication skill. Go like course देख लो कोई 30 days का, YouTube पे कोई सीरीज फॉलो कर लो if you want to for communication skill. या फिर you can learn driving, you can learn like how to drive people crazy or how to drive a car. Learn anything, build a skill. AI से कुछ कोर्स सीख लो, do editing like I am doing YouTube. तो it is more or less like I am learning a new skill in this summer vacation, because I edit my videos myself, I edit my thumbnails. So every day, every other video I am improving and I can see growth in my skills. In ये वाला skills build करना. Also while I am talking to camera, मेरे communication skills भी improve हो रहे हैं. So even I will try to improve and build a new skill which will help me in future. Because देखो academically अच्छा करो और साथ में इसमें अच्छा करो is the best thing. But अगर academics का ही by chance काम है तो other thing will come in thing. राइट अगर तुम्हारा कोई स्पेशल इंटरेस्ट है इन समथिंग, गो फॉर इट, ट्राई डूइंग दैट. सो आई विल जस्ट एज अ फेलो वेल विशर ऑफ योर्स, please learn a new skill. You can search something, ask Gemini, ask ChatGPT what I can do, this is my age, this is what I have opted for, what is that one thing that I can learn which will help me in future, and focus on that. Now that you have decided to build a new skill, you need to build a new hobby too. New hobby or continue with your old hobby. I remember building a new hobby back then in summer vacation, which I am continuing even now, that is reading books. I have never been fond of reading books. Trust me when I say this, because I rarely read books even now. मेरी वो habit अभी भी build नहीं हो पाई to read book every day. I don't force myself to read book, but I do. मतलब मुझे अच्छा लगता है बुक रीड करना जब वो मुझे कोई चीज़ दे रही है. I usually don't like to read stories, some romance books or anything novels, something like that, some literature. Rather self-help books जो मुझे feel कराए, to make me, जो मुझे validation दे that I've learned something.
दैट्स वाई मेरे को उतना फॉन्ड नहीं है. आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ रीडिंग बुक्स. दैट इज रीडिंग इज नॉट माई फोर्टे, बट स्टिल आई डू रीडिंग बिकॉज आई थिंक इट्स अ वेरी वेरी गुड हैबिट एंड आई बिल्ड दैट हैबिट. सो फार आई होप टू कंटिन्यू दिस एंड do very well about this habit in this summer vacation. And when I talk about hobby and habits, you know it could be anything. If you're already fond of reading, try something building new. You can learn guitar, you can learn some instrument, you can go play. Guys, please physical अपनी health पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना. If you're some person like me who loves to play, please go play badminton, chess, जो भी तुम्हारी hobby है. If there is something that you really want to do it right now. This is the very best time. You can literally organize your day yourself. कोई भी तुम्हारे पे force करने वाला नहीं है. If you're going to coaching center, बस तुम्हारा वही time है जो थोड़ा बहुत जाएगा उसमें, बाकी you can shape your day. So do build a new skill and a new hobby. Also, I think I missed one point in hobby. Hobby और तुमने मेरी videos देखी हैं, you already know about that I journal, right? But मैं अपनी journals नहीं दिखा सकती हूँ because I journal like gibberish तरीके से, बिल्कुल ही जिसे कहते हैं ना, लाइक आई जस्ट भड़ास निकालती हूँ. आई जस्ट राइट एंड जस्ट बिल्कुल ही कि ये मेरे दिन में हुआ, ये मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, ये टुडे वाज अ वेरी फन डे, आई एंजॉयड इट, आई फेल्ट इंडिपेंडेंट, ऐसे करके. एंड आई डू इट लाइक एवरी अदर डे, नॉट एवरी सिंगल डे. इट्स लाइक 24, 26, फिर 28 या फिर डायरेक्टली 31, ऐसे करके 1-2 दिन के गैप के बाद आई जर्नल. बट इफ यू थिंक दैट इज अ बोर्डम है भाई, मुझसे हर रोज ये लिखा जाएगा मेरा आज का दिनचर्या या एनीथिंग, इट इज एब्सोल्युटली फाइन, very much understandable. I will suggest you something which I've start doing like a few days back. समझ लो summer vacation से ही. This is it. This is like I will give this journal a name like count on me something करके, but it is basically where you write 5 things I love, 10 things I'm grateful about, 5 things that made me smile, 7 things I absolutely hate, 5 things that I see in my ideal version, 5 things which makes me feel regretful. ऐसे करके if you write, it brings clarity in your life. If you have no habit, if you have no skill, if you have no idea what to do, start journaling at least this way. I see myself. जब तुम्हारे पास सामने चीजें लिखी होती है, मे बी अभी तुम्हें उसका फर्क ना दिख रहा है. इवन आई डोंट फील लाइक कि भाई बस लिख दिया ओके. बट वेन आई एम थिंकिंग अबाउट दिस, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम स्पेंडिंग टाइम विद माई सेल्फ, विच इज अ वेरी गुड थिंग बिकॉज आई एम गेटिंग टू नो माई सेल्फ. आई एम गिविंग मोर रीजन्स टू लव माई सेल्फ बाय द फैक्ट दैट आई नो माई सेल्फ. You should be the one who know itself the most. So that is why this is very important. This brings clarity in your life. And ऐसा मत करो अगर तुमने लिखा है, मैंने पता है if you see, I have put this heading. मैंने अब तक सिर्फ एक ही चीज लिखी है यहाँ पर. I have written like 7 qualities which takes me closer to the ideal me. मैंने सिर्फ एक चीज लिखी है, 6 चीजें नहीं लिखी हैं. Just do something for these 30 days. Just show up. Showing up is very very important. Just show up. तुम बस एक चीज लिखो, 2 चीज लिखो. अगर तुम्हारे पास टाइम है तो सोचो तुम और क्या क्या लिख सकते हो, ऐसे करके. इफ यू हैव नो आइडियाज मैं कौन से टॉपिक्स लूँ, इस चीज के लिए मैंने जेमिनाई पे सर्च किया, मैंने जेमिनाई को प्रॉम्प्ट दिया एंड जेमिनाई गिव मी सम टॉपिक्स कि इन टॉपिक्स पे यू कैन राइट. एंड these things bring peace and joy when you look back at the things कि यार मुझे ऐसे I used to think back in those days and anything like that. You can even write 7 things I learned at 17 or something, which is maybe a series that I will bring when I will turn 17, not now. Okay, so please do this and build a hobby this way if you have nothing. Now last but not the least, enjoy your summer vacations. This is a time, मुझे नहीं पता तुम्हारा कितना टाइम मिलेगा इन योर हेक्टिक वाला स्कूल का शेड्यूल. आई नो, आई स्टिल रिमेंबर 7th 8th तक मैंने बहुत खेला है. मैं खेलने भी जाती थी, मैं पढ़ाई में भी अच्छी थी. अब मैं घर में रहती हूँ, यूट्यूब बस कभी कभार बनाती हूँ, पढ़ाई में भी बहुत ज्यादा तीर नहीं मार रही हूँ. एंड आई एम नॉट इवन गिविंग माई टाइम टू फिजिकल एक्टिविटी या कुछ भी, विच इज अ बैड थिंग. सो okay, do focus on your physical health and just enjoy your summer vacations bro. I am not even exaggerating with this one. I think जो मेरा enjoy वाला phase था वो मैंने 2 दिन पूरा use करा because the last 2 days were very very unproductive. I don't feel regretful because मुझे बहुत time के बाद कुछ movies वगैरह देखने का मौका मिला था. You will see in my further vlogs मैंने videos ज़्यादा देखी, कौन कौन सी movies देख रही हूँ. I'm watching 2 states, some Bollywood, some Hollywood movies like Notting Hill. So yes, I'm giving movies some time and मैं अपने आप को feel करा रही हूँ कि yes, this is my time. I have summer vacations मेरी अभी शुरू हुई है. Also थोड़ा सा CUET preparation के बारे में थोड़ा जानेंगे. What course I want to do, what are the colleges that I want to be in and कैसे prepare करते हैं. Though mostly people prepare for CUET after like 12th, which is the right way because तभी सिलेबस खत्म होता है. But still English is a subject जिसके लिए आप CUET के लिए prepare अभी से कर सकते हो. So maybe you can do that. And if you are preparing for some other exam, then this is the time when you can prepare for that exam too.
बिकॉज वरना तुम अपने यूनिट टेस्ट, हाफ ईयरली, फाइनल एग्जाम्स में फंसे रह जाओगे, जो तुम्हें दूसरे एग्जाम्स के प्रिपेयर करने के लिए शायद उतना टाइम ना मिले. So at the end, just enjoy your summer vacations and do not have regrets. जब मैं summer vacations end होने के बाद एक community post करूँगी, how was your summer vacations, what all you did. I hope you reply with a lot of things, a big list of things that you did in your summer vacations and you're happy with it and satisfied with it. So yes, I think thank you so much for watching this video till the very end. I hope you enjoy watching this video and I hope this video helped you. Do let me know in the comment section, like the video and also subscribe to my channel if you are new. I'll see you in the next one. Till then, take care and bye bye.